Good morning, students. This is our lecture number third, right? Alcohols, phenols, and ethers. I think lecture number 4 it is, no? Okay. So alcohol, phenols, and ether is lecture number 4, and in this part we will discuss about physical and chemical properties of physical and chemical properties of physical and chemical properties of alcohols, specific alcohols and phenols, है ना. थोड़ा बहुत अपन phenols को भी यहाँ पर include करेंगे. So alcohols and phenols, है ना. So in this part we will discuss about it, है ना. It is very long part actually, or I must say it part have at least 2 or 3 lecture I can say. We are on this part now. So the one is physical properties of alcohols as well as phenols, and chemical properties of alcohols as well as phenol we'll discuss in this part. Okay, now let's see physical properties of alcohols and phenols. The boiling point. सबसे पहले अगर अपन बात करें boiling points की, so boiling points of alcohol and phenol increase with increase in the number of carbon atoms. सबसे पहली बात, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. अगर कार्बन एटम ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे. इट इज़ वेरी मच क्लियर टू, है ना. अगर कार्बन नंबर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, राइट. इन द सेकेंड केस, इन एल्कोहल्स, अगर हम एल्कोहल्स की बात करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज हैपन्स बिकॉज specifically I can say in isomers, those having same molecular mass, right. Remember, in covalent compound, to compare boiling points as well as melting point, we need some criteria. We have an order for this. सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, उसके बाद हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस देखते हैं, उसके बाद हम मॉलिकुलर मास देखते हैं. एंड if molecular mass is same, in that case हम सरफेस एरिया देखते हैं. सरफेस एरिया इट मीन्स हाउ मच एरिया इट कवर्ड, राइट. जब हम लिखें उसका स्ट्रक्चर बनाए तो ज़्यादा एरिया किसमें वो कवर करता है, लाइक दिस, राइट. सो and actually the surface area decide the van der Waals force or type of which type of van der Waals forces, London force or dispersion force, है ना. वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं फिर, है ना. van der Waals और डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, है ना, आयन इंड्यूस डायपोल, ऑल आर van der Waals force of attraction. बट जो है van der Waals forces में हम उन्हें काउंट कर लेते हैं. ओके. So butanol, 2-methyl, 1-propanol, 2-butanol, you can see all these are for isomers of I can say C4H9OH, है ना. ये सारे के सारे जो आइसोमर है C4H9OH के हैं, you can see here. And in this case you can find that it is direct straight chain, it is one branching, right. It also have almost one branching, ठीक है. And it is that 2 branching, right. Now you can see in 1-butanol, ठीक है. अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये प्राइमरी है. सो वी कैन से डायरेक्टली प्राइमरी इज मोर बेटर देन सेकेंडरी लाइक दिस. ब्रांचिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो यू कैन सी इन दिस दैट बॉइलिंग पॉइंट इज 117 डिग्री सेल्सियस. इट इज स्ट्रेट चेन, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट. थोड़ी सी ब्रांचिंग आई 107 डिग्री सेल्सियस. इसमें रिलेटिवली ब्रांचिंग ज़्यादा हो जा रही है क्योंकि OH जो है वो ब्रांचिंग बना रहा है. इस तरीके से हमें OH के साथ ब्रांचिंग देखनी होती है खासकर. सो इन दैट केस OH से जुड़े हुए कार्बन पर 2 ब्रांचिंग है. सो 98 डिग्री सेल्सियस एंड टर्सरी इन केस इट इज 82 डिग्री सेल्सियस. यू कैन सी वेरी इजिली एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी सिमिलर टू हेलोएल्केन ऑल्सो. We had discussed about haloalkanes previously, that branching decrease boiling point. Same idea is applicable here also, right? Branching decrease boiling point, right?
One more important thing is also we need to know that boiling point of alcohols is higher than relative same molecular masses, जो इनके relative same molecular mass compound like hydrocarbon, ethane, ethers, haloalkanes, haloarenes, है ना, जिनके same molecular, I'm talking about जिनके same molecular mass होते हैं, अगर हम उनमें कंपेयर करें तो if we have hydrocarbons, if we have ethers, if we have haloalkanes, if we have haloarine, in that case alcohols and phenols have higher boiling point. It is because the presence of hydrogen bond between the molecules of these. You can see here hydrogen bonding is occur between in such compounds those having OH bond, where hydrogen is bonded with oxygen, where hydrogen is bonded with nitrogen, where hydrogen is bonded with fluorine, where hydrogen is bonded with most electronegative atoms, right? So they show hydrogen bonding, and due to hydrogen bonding the force of attraction increase between the particles. Normally there is always a van der Waals force of attraction between the particles, which is known as van der Waals force, which is more known as London force or dispersion force. But in many compounds इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, डायपोल डायपोल भी हो सकता है. लंदन फोर्स एंड डिस्पर्सन फोर्स एटलीस्ट दे आर अवेलेबल, ठीक है, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर इन द कंपाउंड्स. सो बिकॉज ऑफ दीज बॉन्डिंग the force of attraction between particles, what is boiling point? Boiling point is rising of liquid molecule from the bulk of the liquid, right? It is boiling. So when molecule rise, अगर अंदर वाला molecule उसे अपनी तरफ खींचेगा, attraction करेगा, तो obviously उसको बाहर निकालने के लिए, उस बाहर जो molecule जा रहा है उसको बाहर निकालने के लिए we need to give more and more temperature. Okay, so in that condition definitely it is very much clear to you, I can say कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, isn't it? You can see phenols also have OH bond, so it also show hydrogen bonding, right? So this is the reason, except I can say except acid carboxylic acids, alcohols and phenols have highest boiling point with comparable molecular masses organic compound. Remember it. Okay, so it is very important to you, and it is remember all these things. Now the second is solubility of alcohols and phenols. Again the reason is same. Alcohols and phenols relatively the first thing is कि alcohol phenols are precisely soluble in water, ठीक है, right? ये बात अलग है कि एज मॉलिकुलर मास इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज देयर इज टू पार्ट. वी नीड टू रिमेंबर वेर एवर वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी नीड टू नो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन हैज टू पार्ट्स. वन इज एल्काइल चेन, राइट, एंड अदर वन इज एल्काइल चेन and other one is any functional group, right? So here the functional group is OH, which is very good interaction with water molecules, you can see here also. But due to this alkyl chain which is actually has nature as hydrophobic nature, है ना. एल्का, जब भी आपसे हाइड्रोफोबिक नेचर की बात कही जाती है, आप बायो में भी हाइड्रोफोबिक नेचर के बारे में कई बार बात करेंगे, इट मीन्स वहाँ पर जिस पार्ट की बात हो रही है वो एल्काइल चेन होगी, तभी वो पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा, राइट. सो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है इसके कारण से ये वाटर से दूर हटता है, और जैसे जैसे ये पार्ट बढ़ते जाता है सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है. बट कुछ अल्कोहल्स ऐसे हैं, इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लाइक मीथेनॉल इज सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन, इथेनॉल इज आल्सो सॉल्युबल, राइट. ओके, सो इट रिमेंबर इट. सो सॉल्युबिलिटी इज गुड. It is not given in your that part. It is not in your syllabus, so I had not mentioned here. But remember, melting point is also good for alcohols and phenols, right? So it is also generally depends on all those factors that I mentioned. But one more important factor for melting point is the symmetry.
सिमेट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम इन्हीं तीनों केसेस के बारे में बात करें जो हमने अभी डिस्कस किए थे, उन्हीं तीनों केसेस के बारे में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बिहाफ ऑफ सिमेट्री आई कैन से कि ये जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी टर्सरी, दोनों टर्सरी का मेल्टिंग पॉइंट और प्राइमरी का मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम देखें तो प्राइमरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होगा, फिर टर्सरी का होगा, और उसके बाद जो है बाकी जो होते हैं उसके बाद आते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स आते हैं। तो एक चीज़ तो ये। द सेकेंडरी इज ऑलवेज रिमेंबर वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन और एल्कोहल ऑफ फिनॉल, every time the melting point of compounds having odd carbon is less than melting point of compound having every time, it means actually I want to say that melting point of compounds having even number of carbon is higher than the melting point of nearing melting point of neighboring odd number carbon compounds, like if we are talking about butanol, pentanol and hexanol, if we are talking about that butanol, pentanol and propanol, right, in that case melting point of ऑब्वियसली प्रोपेनॉल से तो ब्यूटेनॉल का ज़्यादा ही होगा क्योंकि मोलिकुलर मास ज़्यादा है, सो ब्यूटेनॉल का ज़्यादा होगा, लेकिन ब्यूटेनॉल का पेंटेनॉल से भी ज़्यादा होगा, बिकॉज इन इवन नंबर देयर इज अ सिमेट्री, इवन नंबर में एक सिमेट्री होती है ना, तो इवन नंबर की सिमेट्री के कारण से इन प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन पेंटेनॉल एंड देन प्रोपेनॉल। ऑब्वियसली प्रोपेनॉल का तो कम होने ही वाला है, लेकिन पेंटेनॉल से ब्यूटेनॉल का ज्यादा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, right? So remember, it is very important. Sometimes it may asked in various examinations. Okay, so these are physical properties of alcohols and phenols. Now I'm moving on chemical properties. Alcohols as nucleophiles. Remember, alcohols chemical reaction की अगर हम बात करते हैं तो alcohols have two lone pair of electron. We can easily understand it. So in that case, alcohol will attack over any electrophile, and in that case it act as a nucleophile. Nucleophiles, as we know, electron rich species, so alcohols have two lone pair electrons, so it act as electron rich species and it will attack on any electrophile. जहाँ पर प्लस चार्ज है वहाँ पर ये अटैक करेगा and it will be bonded there. I think it is very much clear to you, right? So you can see in the first diagram it directly attack on carbon and afterward lose hydrogen also. And the second is protonated alcohol as electrophile. You can see here कि अगर H plus OH के साथ जुड़ जाता है तो what will happen? OH2 plus बन जाए, right? It is protonation. H plus ऑक्सीजन ने, जैसे ऊपर वाले रिएक्शन की बात करें तो अगर ये मॉलिक्यूल बन जाता है तो it will act as a ये कैसे एक्ट करेगा? OH2 प्लस बनेगा तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो इन दैट केस दिस CH2 विल बी एक्ट एज, in this case because oxygen is very, अगर generally we know oxygen is more electronegative, and if it get positive charge it will be highly negative, then positive charge is more electronegative than negative charge, remember it, okay? So Br minus will attack over there because in that case OH2 plus pull electron from here and CH2 will get positive charge, right? One more important way of reaction of alcohols and phenol I'm talking about, we'll discuss about it also, that is acidic nature, that is reaction of OH bond, है ना? So एक और टाइप की रिएक्शन होता है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, so that is about like CH3 CH2 OH, right? And when it react with sodium or any like base, generally strong base, okay? So in that case Na and Na will react with H, that Na will react and H plus will be removed, so bond will be C2H5 O minus and Na plus and H plus. So these reactions are due to the acidic nature, these reactions are due to the acidic nature of alcohol.
है ना। सो तीन तरीके के रिएक्शंस पर हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं H प्लस बाहर निकल रहा है, ओके, बट इट इज नॉट लाइक दैट रिएक्शन, राइट। सो एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली protonated alcohol, as an electrophile it means OH2 और H2 will be good leaving group, so nucleophilic substitution reaction यहाँ पर हो सकते हैं, कोई nucleophile will attack over there and OH2 will be out, right. And the third one as a acidic nature, right. I'm telling you one more important thing here कि जो ये वाले रिएक्शन होते हैं, this OH2 प्लस से H2O बाहर, it is not for phenols, क्योंकि फिनॉल्स में वी नो कि फिनॉल्स में हमेशा याद रखिएगा फिनॉल में ऐसा रिएक्शन नहीं होगा कि H2, बिकॉज फिनॉल विल डिस्कस अगेन, बट मैं आपको यहां जरूर ये बता देता हूं कि यू कैन सी OH, तो जैसे ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, यू कैन सी इन मैनी रिएक्शन वी विल सी ये वाला बॉन्ड इजीली टूटता है, बट फिनॉल्स में ये वाला बॉन्ड इजीली नहीं टूटता, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरह के रिएक्शन जहां OH2 प्लस के फॉर्म में सेकेंड कंडीशन ऑफ रिएक्शन विल नॉट अकर विथ phenols, this type of reaction, okay, remember it, okay. So three type of reaction we had discussed about alcohols and phenols. For phenols there is two type only, one is alcohol as a nucleophile, a phenol as a nucleophile and acidic, and for alcohol these are three type of reaction, as a nucleophile, as a electrophile, protonated alcohol as a electrophile and as acid, okay. So now we are on first type of reaction involving cleavage of OH bond. This is due to acidity of alcohols and phenols. You can see various reaction here. In these reaction with metal you can see the same reaction I had mentioned, with aluminium the same reaction, H निकल जाएगा and aluminium will like this. जैसे हम बेसिकली हम एसिड के बारे में बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तो सेम रिएक्शंस आर देयर। सोडियम H प्लस निकलेगा, जब दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो H2 निकल जाएगा, राइट। एंड इन दिस केस ऑब्वियसली H2 निकलेगा बिकॉज सोडियम इज आयनाइज्ड, एक इलेक्ट्रॉन वो वहां दे रहा है, तो हमें इसे सही से लिखना चाहिए 2 and here is H2 like this. So any metal will react with specifically a strong metal or S block metal. When it react with those metals or aluminium, it gives hydrogen gas and forms salt. Aluminium tertiary oxide, sodium alkoxide और sodium phenoxide it is. Phenoxy, जब O किसी ग्रुप के साथ जुड़ा होता है तो उसके रूट वर्ड के साथ, जैसे हमने कहा OCH3 तो हम कहेंगे मेथ और ऑक्सी, methoxy. Okay, we will discuss in nomenclature of ether also it is. Now here in this case you can see alcohols and phenols are Bronsted acid. They can donate a proton to a stronger base. Bronsted acid आप सभी को पता होगा, and before the class remember each and every one. I'll ask that order I had mentioned when we will would discuss the Bronsted acid base concept, the order of acidic strength of various acids as well, or various Bronsted acid. I had discussed with you and I'll ask that order with you. I'll discuss that order with you. I'll ask that order, right? I'll ask, okay? So remember it. So alcohols and phenols are Bronsted acid. Bronsted acids क्या होते हैं? Those can give hydrogen ion. जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो Bronsted acid, जो हाइड्रोजन आयन लेते हैं Bronsted base. तो जब हम एल्कोहल यहाँ मैं आपके थोड़ा सा आपके बुक के अलग थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। रिमेंबर इट, जब हम एल्कोहल्स की बात करते हैं तो एक आपने बेस ले लिया एंड बेस एंड OH, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया C2H5। तो इन दैट केस क्या, यहाँ पर R ले लेता हूँ मैं, इट वुड बी बेटर, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बेस हाइड्रोजन लेके जाएगा, सो ये BH बन जाएगा एंड इट वुड बी OR माइनस। ये बेस कैसा होना चाहिए, रिमेंबर ये बेस दिस बेस मस्ट बी द कॉन्जुगेट बेस ऑफ
acids, the conjugate base of acids coming after C2H5OH. एसिड बेस रिएक्शन की बात करें तो C2H5OH के बाद जो एसिड आते हैं उस सीरीज में, और C2H5OH से कम एसिडिक हो, दोज आर लेस एसिडिक देन C2H5OH, उनके कॉन्जुगेट बेस वुड अटैक देयर. व्हाई इट इज सो? बिकॉज इन दैट केस एवर रिमेंबर दिस रिएक्शन अकर्स एज, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कहा जाता है कि C2H5OH will react with NaOH, so in that case we need to know कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा. नॉर्मली हम कह सकते हैं कि C2H5ONa will give and H2O will form, okay, because H ये दे देगा तो OH और H मिलकर H2O बना लेंगे और H हट जाएगा, वहाँ पर Na आ जाएगा. जनरली एसिड बेस रिएक्शन ऐसे ही होते हैं. सो देन हाउ वुड वी नो कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? सो इन दैट कंडीशन आपको रिक्वायर्ड होगा वो जो सीरीज मैंने आपके एसिड्स की लिखी हुई है. यू कैन सी, आप यहाँ देख लीजिए, जैसे हमारे पास C2 दो एसिड है, एक एसिड ये है और एक एसिड ये है. वी हैव टू एसिड ना. This is conjugate, this is acid, it is conjugate base of acid. This is base, this is conjugate acid of this base, okay. This is acid, conjugate base of acid. This is base, conjugate this is conjugate acid of base, okay. So this is acid, this is acid. Now with the help of that series you can see H2O is more acidic than C2H5OH. So in that case it would be weak acid and it would be strong acid. So obviously strong acid का conjugate कैसा होता है? अगर मैं obviously किसी भी डायरेक्शन में conjugate समझ सकते हैं तो strong acid का conjugate कैसा होता है? तो ये हो जाएगा weak base, और weak acid का conjugate कैसा होता है? strong base. तो अगर ऐसी situation आती है तो reaction will not occur. So this is very important. इसी बेस पर हम बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा एंड कौन सा रिएक्शन नहीं होगा. सिमिलरली वी हैव C6H5 एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई एम मेंशनिंग हियर, रिमेंबर व्हाट इज इट? C2H5ONa, मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूँ, C2H5ONa इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH. जनरली हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस बट C2H5ONa इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH, right? So remember it. If I'm talking about the same reaction C6H5OH plus NaOH, what will happen in this case? In this reaction again हम वैसे ही लिख लेते हैं C2H5, जैसे ये रिएक्शन तो हो नहीं पा रहा था, C2H5ONa plus C6H5ONa plus H2. Now let me see, again I need to concern with that series. That's why I told you कि हमें वो सीरीज याद होनी चाहिए. And definitely I'll write that series for other student in next class. ठीक है, I'll try to write, अगर मेरे पास याद रहेगा मुझे, but I want to know from my student, और I actually want कि वो अपने उससे देखें. But I'm telling you this, the C6H5 or next class, in next lecture I'll definitely write this that order, okay. So you can see that you can अगर आप उस सीरीज से जाएं तो उसमें आप देख पाएंगे कि H2O will be less acidic than C6H5OH. So it will be strong acid, it will be weak acid. So obviously strong acid का जो conjugate base होगा वो weak base होगा, और weak acid का जो conjugate base होगा वो strong base होगा. तो we can see NaOH is better or more stronger than C6H5ONa. So this reaction will be take place. राइट. सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप यहाँ देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तभी रिएक्शन होगा, वीक एसिड वीक बेस देखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा. तो जब भी आपको ये बताना हो तो यू मे कंपेयर दिस, राइट. सो एल्कोहल एंड फेनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, नो डाउट, और उसी बेसिस पर हम इस चीज को कंपेयर करते हैं. ब्रॉन्स्टेड एसिड तो क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड बनता है और एक कॉन्जुगेट बेस बनता है. दैट आई ऑलरेडी मेंशन टू यू, ओके. So reaction with metals, alcohol and phenols are Bronsted acids.
Now let me discuss some more important point for acidity of alcohols also. The first is why alcohols are acidic. So it is so because OH bond is polar. Oxygen is more electronegative, hydrogen is less electronegative. So due to OH bond polarity, alcohols act as a acid, but not a so strong acid, because ऐसी कोई condition नहीं है. Strong acid बहुत ज़्यादा strong acid नहीं है, but it is a strong acid. It is a strong acid. It is an acid. Okay. So why it is acid? Because of the polarity of OH bond. O is an electronegative and hydrogen is electropositive. तो एक polarity है तो acid है. बस बात खत्म. ब्रॉन्स्टेड का concept केवल इतना ही था. ब्रॉन्स्टेड का concept ये नहीं था कि solution में H plus देगा या नहीं देगा, नहीं. If it can give H plus with a base, anyways it would be acid, right? Now अगर हम OH ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 C2H5 ऐड करते हैं तो ये क्या करेंगे? They are electron releasing group. So what can they do? They increase electron density over oxygen. और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन भी कैसा होने लगेगा? भाई इसने इलेक्ट्रॉन्स काफी ले लिए, इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलने लगे तो ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आने लगा. और जैसे जैसे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज बढ़ते जाएगा, ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी. मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जिसके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ते जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ते जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है. ओके. सो जैसे जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 C2H5 यहाँ बॉन्डेड होगा, यू कैन सी हियर, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके कारण से उसके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा और उसके कारण से उसकी क्या हो जाएगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी. ओके. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है. ओके. और इसके कारण से क्या होगा? इन दोनों के बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस कम हो जाएगा और स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक प्लस आई प्लस एच और प्लस एम ग्रुप जुड़े होते हैं, प्लस एम हम तभी काउंट करते हैं जब कॉन्जुगेशन होता है, प्लस एच और प्लस एम तभी काउंट करते हैं जब कॉन्जुगेशन होता है. अगर कॉन्जुगेशन है तो आप उन्हें भी काउंट कर सकते हैं, राइट? सो इन दैट केसेस दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली दे एनहेंस एसिडिक स्ट्रेंथ. इन सेकंड केस यू कैन सी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं यानी माइनस आई ग्रुप होते हैं, अगर कॉन्जुगेशन है तो माइनस एच और माइनस एम भी काउंट हो जाएंगे, तो उस कंडीशंस में वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं. तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना, तो OH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. सो रिमेंबर, अगर प्लस आई ग्रुप जुड़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, माइनस जुड़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट? जैसे मैंने अल्कोहल्स के लिए कहा, सेम यू कैन सी फॉर फिनॉल्स. फिनॉल्स में भी यही होता है, ये H जो है वो इट लूज H प्लस आयन, जैसे इसमें भी OH पोलैरिटी होती है, बट फिनॉल्स आर or aromatic alcohols are more acidic than aliphatic alcohols. Why? Because the C6H5 ring is minus I in nature, and this R generally, if it is alkyl CH3, it generally, if we are talking about alkyl, why, right? So alkyl groups जो होते हैं जनरली प्लस आई होते हैं, और जो फिनॉल्स में जो बेंजीन रिंग होती है माइनस आई होती है. इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन alkyl alcohols. अगर विनाइल अल्कोहल्स की बात है तो मैं कहूँगा फिनॉल जैसे ही होते हैं, और अगर हम एल्काइनिल यानी हम ऐसे अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं जिसमें एल्काइंस जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में उनका माइनस आई इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, राइट? बट एल्काइल और फिनॉल की हम कंपेयर करते हैं, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट, सो उस केस में हमेशा याद रखें कि फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होती है.
क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है बेंजीन रिंग। सो साइक्लोहेक्सेनॉल एंड फिनॉल दोनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? साइक्लोहेक्सेनॉल इज लाइक दैट एल्काइल ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेल इज लाइक एल्काइल ग्रुप, सो ऑब्वियसली वो कैसा हो गया? एलिफेटिक हो गया। एलिफेटिक बेसिकली हम कह सकते हैं एल्काइल अल्कोहल जैसा, नॉट एलिफेटिक, राइट? तो फिनॉल्स की ज़्यादा हो जाएगी साइक्लोहेक्सेनॉल से। इज इट क्लियर टू यू नाउ? राइट, नाउ हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि एसिडिटी ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है? तो पहली चीज़ तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो OH बॉन्ड है, this OH bond is polar, that's why it easily gives hydrogen due to the electronegative ring. It is also minus I nature of the ring is also very very important. The third one is one more important thing, remember this, मैं यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ, अलग से शेयर करता हूँ इस चीज़ को, हमेशा याद रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उसका कॉन्जुगेट वीक होता है, एज वी नो वेरी वेल। वीक एसिड होने का मतलब क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वीक एसिड मतलब स्टेबल एसिड, ओके? वीक बेस मतलब स्टेबल बेस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मेरे पास दोनों चीजें हैं, लाइक फिनॉल भी है और फिनॉक्साइड आयन भी है, right? As we know very well, this is phenoxide ion और यहाँ से ये बनाएगा और H plus निकाल देगा। Now my question is, which one is more stable? Which one is more stable? So you can see in this case, in both the cases there is a conjugation. But in this case there is a pure conjugation, like ऑक्सीजन पे कोई भी प्लस चार्ज नहीं आता, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। और शायद आपको ध्यान हो या नहीं हो तो ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज विल बी मोर स्टेबल। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी स्टेबिलिटी होगी। तो O के ऊपर पहले केस में प्लस चार्ज है और बाद वाले केस में माइनस चार्ज है। एंड माइनस चार्ज इज delocalized. Here is lone pair is delocalized. Here is minus charge is actually delocalized. You can see, right? So that's why we can say कि जो फिनॉक्साइड आयन है इज मोर स्टेबल, राइट? फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। ऑब्वियसली ये एसिड है, ये बेस है। नाउ बेस इज मोर स्टेबल, इट मींस बेस इज वीक एसिड, तो ऑब्वियसली फिनॉल विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम यही केस अप्लाई करें, जब भी आपको ये कंपेयर करना है आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी केस के लिए। C2H5O माइनस और H प्लस के लिए अगर हम सेम केस अप्लाई करते हैं तो व्हाट विल हैपन नाउ? You can see again the minus charge on oxygen, but is it in conjugation? No. The second is this is plus I group. It give electron to oxygen also, so it enhance electron density over oxygen. राइट? तो उस कंडीशन में क्या होगा? माइनस के ऊपर आप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो उस केस में आप देखें कि ऑब्वियसली अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इट विल बी रिलेटिवली लेस स्टेबल। इट विल बी रिलेटिवली, इन दोनों केसेस में देखें तो इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू C2H5OH माइनस, C2H5O माइनस। तो एक और केस मिल गया, मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। ये भी एक रीजन हो सकता है। सो व्हाट आर द रीजन, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई alcohols, alkyl alcohols are less acidic than phenols, so one is minus I nature of the ring, other one is that conjugation in a ring, the third one is
the more stable phenoxide ion as compared to alkoxide ion. I had given the order. I have given the order of एसिडिक स्ट्रेंथ. अगर हम देखें फिनॉल और मीथेनॉल, मीथेनॉल थोड़ा सा वाटर से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, अदरवाइज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर. प्राइमरी एलिफैटिक अल्कोहल, सेकेंडरी एलिफैटिक अल्कोहल, टर्सरी एलिफैटिक, ये ऑर्डर होता है. व्हाई इट इज सो? मीथेनॉल, उसके बाद वाटर, उसके बाद फिर प्राइमरी में इथेनॉल से आप कह सकते हैं. जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाता है, हायर अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक. जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाता है, रिमेंबर, एज कार्बन नंबर इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीज. एज कार्बन नंबर इंक्रीज, कार्बन नंबर इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ alcohols decrease. Remember it. Okay, so it is, I think, very much clear now. So this is all about that I'm talking कि क्या किस तरीके से होगा, फिनॉल्स की कैसी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. एंड अगेन द प्लस आई प्लस एम, नाउ इट इज प्लस आई प्लस एम प्लस एच, ऑल आर एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो, isn't it? So we can say अगर plus I plus H plus I plus H plus M groups if bonded with benzene ring, the acidic strength is decreased, and if plus I minus H minus M is bonded with benzene ring, the acidic strength is increase. Acidic strength increase. Okay, is it clear to you? Now here I am with some example also. You can see इन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल दैट आई ऑलरेडी मेंशन कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, राइट. और ऑब्वियसली वी नो कि जो कॉन्जुगेशन होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इन्वॉल्व होता है. तो ग्रुप कॉन्जुगेटिंग ग्रुप इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन इफ इट इज इन ऑर्थो पैरा पोजीशन. इफ इट इज इन मेटा पोजीशन, नो, दैट ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन. मैंने अब पहले ही बता दिया. तो ऑर्थो पैरा का इफेक्ट हमेशा ज़्यादा देखने को मिलता है, मेटा का नहीं. Okay, electron releasing group होंगे तो I had mentioned already. Here is some groups are given. I'm talking about ortho, meta and para nitrophenol. Ortho, meta and para nitrophenol. Ortho, meta and para nitrophenol. This is ortho nitrophenol. This is metanitrophenol, and this is paranitrophenol. Ortho nitrophenol, meta nitrophenol, paranitrophenol. अगर मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, लेट दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले NO2 के बारे में जानना है. हम जानते हैं, आप अगर देखें तो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी NO2 का नेचर -M होता है और -I भी होता है. मेटा पोजीशंस पे जब होता है तो मैंने पहले भी कहा इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन क्यों होता है, दैट बिकॉज -M ऑपरेट नहीं होगा मेटा पोजीशन से, तो यहाँ पर केवल -I ग्रुप होता है. और इस मेटा पोजीशन, इस पैरा में अगर बात करें तो -M ही ऑपरेट होता है, बिकॉज जनरली एक्सेप्ट हेलोजन और सम अदर ग्रुप्स जनरली फोर्थ पोजीशन पे, और अगर -I होता भी है तो वेरी वीक, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, राइट. तो डिस्टेंस जैसे से बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लगेगा. सो इन दैट केस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या हो जाएगा, जनरल जो ऑर्डर है, आप यू कैन सी इन दिस केस जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए,
सब देखिए पी के वैल्यू जिसकी सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जनरल, और इसमें देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा दिया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्चुअली। पहले तो हम अपनी जनरल बात कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्थो विल बी हाईएस्ट, देन पैरा, देन मेटा, ये ऑर्डर होना चाहिए। समझ गए आप। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेसिफिकली जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑपरेट होता है। इन दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इट शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH and this N and this double bond O and O. So in this case there is intramolecular hydrogen bonding इसमें, और उसके कारण से because of this intramolecular hydrogen bonding जो हाइड्रोजन है थोड़ा सा मॉलिक्यूल के अंदर स्टक हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता थोड़ी देर के लिए या थोड़ा इंस्टेंट के लिए, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एक्चुअल ऑर्डर बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये चेंज होता है। इसके अलावा अगर कोई और ग्रुप होगा तो इट विल नॉट चेंज, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पैरा का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑर्थो का, और फिर मेटा का। अदरवाइज जो मैंने पहले फॉलो किया आपको यही फॉलो करना है, राइट। कोई और माइनस आई, जैसे एफ ले लिया, ऐसा कोई माइनस आई नेचर होगा तो ऑब्वियसली वही ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिसॉल्स। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑपरेट नहीं होगा। क्रिसॉल्स CH3 CH3 and CH3 sorry, it must be there at meta position, and in the third case it must be on OH para position. अब as we know, the first important thing is, as we know that alkyl group is, methyl group is plus I, it is as we know it is very much, it is plus I group, as well as it show plus H also, हाइपर कॉन्जुगेशन भी देता है, ध्यान रखिएगा। और जब आप इसमें जो है वो कॉन्जुगेशन बनाएंगे तो यहाँ माइनस चार्ज भी आएगा, तो प्लस H और प्लस I। वैसे माइनस चार्ज के लिए प्लस H हम काउंट नहीं करते, बट अगर हमें काउंट करना है तो हम दोनों देखेंगे। तो प्लस H और प्लस I होगा, इस केस में देखें तो प्लस I होगा, और इस केस में देखें तो प्लस H प्लस I दोनों ही होगा, ठीक है। सो इन दैट केस अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को हमें पता है, हमें ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा, अब यहाँ देखिए प्लस आई नेचर थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जितने ज़्यादा प्लस ग्रुप होंगे, जितना ज़्यादा प्लस नेचर होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो इन दिस केस अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्रिसॉल्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो कौन सा होगा, मेटाक्रिसॉल। उसके बाद कौन सा आएगा इन दोनों में, ऑब्वियसली पैराक्रिसॉल, और सबसे कम एसिडिक जो होगा वो ऑर्थोक्रिसॉल। आप यही चीज उनके पीके ऑर्डर से, पीके वैल्यूज से भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इंडक्टिव इफेक्ट के डिस्टेंस के कारण से पड़ता है, ठीक है। इन दोनों का सेम दे दिया बट थोड़ा सा इफेक्ट उसके कारण से पड़ता है। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ये हमें 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स गिवन है और हमें इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो, है ना। इन नेक्स्ट क्लास आई विल, इफ एनीवन आस्क्स इन क्लास विद माय स्टूडेंट, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास। अदर वंस अगर रिक्वायर्ड होगा तो यू मे कमेंट, तो मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर लूँगा। ओके, लेट वी डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, कोई इशू नहीं, इसको डिस्कस कर लेते तो अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी रिगार्डिंग दिस। ओके, चलिए डिस्कस ही कर लेते हैं। So in that case let me see what are there. The first one is phenol, so let me draw phenol here, phenol and paranitrophenol. Okay, so phenol is there, paranitrophenol is there,
In the third case, phenol is there, para-nitrophenol is there. Okay, in another case, this is meta-methoxyphenol. Okay, and one more is there. Two more is there. Meta-nitrophenol and para-methoxyphenol. Okay, meta-nitrophenol and one more is there, that is yes, para-methoxyphenol. Okay, para-methoxyphenol, OCS3. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उनके नेचर पता होना चाहिए, जो भी ग्रुप जुड़े हुए। जैसे इस केस में देखें, फिनॉल अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगा। इन दिस केस यू कैन सी दिस इज -m and -i। ठीक है, डिस्टेंस का इश्यू होता है। इट इज -i, +m होता है, लेकिन +m क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं तो +m होता है। यू कैन सी, मैंने आपको, या मेसोमेरिक इफेक्ट्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनका ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं, उनके एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हैं। एंड इन दिस केस NO2 अगेन इट इज एट मेटा पोजिशन, इट इज -i, एंड OCH3 एट पैरा पोजिशन इट्स शो +m एंड -i। OCH3 OH है ना, OR जो होते हैं ये +m -i ग्रुप शो करते हैं। सो इन दैट कंडीशन नाउ यू कैन सी -m -i इज देयर। So obviously most acidic will be first, second, third, fourth and fifth. The most acidic will be second. Afterwards बाकी केसेस में देखते हैं, तो बाकी केसेस में आप देखें तो दिस इज +m, तो ये तो सबसे लीस्ट हो जाएगा। -i तो NO2 का -i ज़्यादा होता है, देन फोर्थ वन इज, आप ऑर्डर चेक कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज, एंड उसके बाद क्या आएगा, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल पे +m जुड़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फिनॉल की, तो उसके बाद फिनॉल आएगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ। दिस इज द ऑर्डर, isn't it? So the correct answer will be, what is your correct answer in this case now? So second, fourth, first, third and fifth हमने क्या लिया हुआ है, सेकेंड, फोर्थ। देखिए अब ये मैंने क्या है, किसी साइड से लिया हुआ था, एंड इट इज अगेन सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट इज गिवन। सेकेंड, फोर्थ के बाद फर्स्ट इज गिवन, बट इन OCH3 with OH here is -i impact. So options are wrong. I had just given the questions. Options are wrong. All options are wrong. Correct answer is second, fourth, third, fifth and fifth. Remember this. Okay. So this is about what we called. This is the acidic and basic strength. ठीक है. And one more important thing. I think it is not need to mention, but I am mentioning here that as number of NO2 increase in benzene ring, in phenol acidic strength increase. Trinitrophenol is so much acidic, it is also equivalent to what? It is equivalent to almost acetic acid, trinitrophenol, and it is called picric acid और TNT। याद कीजिए, कहीं आपने TNT सुना होगा, ठीक है। सो इट इज, ऑब्वियसली इट इज वेरी मच क्लियर कि -i -m ग्रुप जैसे जैसे रिंग्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ एंड द रिएक्शन ऑफ इट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि NaOH, देखिए अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एक लास्ट पॉइंट जो मुझे आपसे शेयर करना है वो जरूर याद रखिएगा। आप ऑर्डर चेक करिएगा, C2H5OH will react with Na, yes it react with Na, C2H5O Na बना लेगा। It react with NaOH, NaH
it will form C2H5ONA plus H2, Na के साथ भी H2 बनाएगा. It react with NaNH2, no issue, क्योंकि ये सारे NH3 H2 ये सब इससे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. ONA plus NH3 बनाएगा, no issue. It react with CH2 double bond CH Na, yes it react with that also. So ये C2H5ONA बनाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा, नो इशू. इट रिएक्ट विथ दैट C2H5Na, C2H5Na के साथ ये रिएक्शन करेगा, C2H5ONA बना देगा और C2H6 बना लेगा, नो इशू. बट इट वुड नॉट रिएक्ट विथ NaOH. एंड वन मोर थिंग, for potential C2H5OH will not react with NaOH, and it is also not react with for to be potential acid. NaOH तक तो ठीक है. अगर potential acid होना है किसी acid को तो remember it must react with NaHCO3. NaHCO3 सारे potential acid वही माने जाते हैं जो NaHCO3 से रिएक्शन करते हैं. NaOH से ही रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए पोटेंशियल एसिड नहीं है. लेकिन अगर हम C6H5OH की बात करते हैं तो C6H5 जितने भी हमने बाकी रिएक्शन दिए हुए हैं सब रिएक्शन एज इट इज देता है. NaOH से भी रिएक्शन करता है और C6H5ONA बनाता है और साथ में H2 देता है. बट अगेन C6H5 NaHCO3 से OH फिनॉल जो है वो NaHCO3 से रिएक्शन नहीं करता है, तो ये भी पोटेंशियल एसिड नहीं है. बट ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है जिसमें 3 NO2 मैंने जोड़ दिए थे वो NaHCO3 से रिएक्शन करता है. CH3COH NaHCO3 से रिएक्शन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2. NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, वही पोटेंशियल एसिड माना जाता है. ओके, बाकी को एसिड हम कह सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड कह सकते हैं और पोटेंशियल एसिड नहीं कह सकते. सो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर. मैनी पॉइंट आई हैड डिस्कस्ड विद यू टुडे. इट इज अ लॉन्ग वीडियो नाउ बिकॉज yesterday आई हैड नॉट गिवन एनी वीडियो. ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज स्टडी इट. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इट इज. थैंक यू.